A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fine. Okay, now as you all know that we were doing chapter number 12, our human resources. We had completed the reading part of this chapter. Now we will take quick review of this chapter, and afterwards we will do the quiz zone and writing zone of this chapter. Okay, everyone? So take out the quick review of this chapter. Okay, see. Quick review. India is the seventh largest country in area and the second largest in population. जो इंडिया है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, यानी एरिया में इंडिया का कौन सा नंबर है, सेवेंथ नंबर है, और पॉपुलेशन में इंडिया का सेकंड नंबर है. अंडरस्टूड एवरीवन? Now second point, China's population is 3 times larger than that of India. जो चाइना की population है वो इंडिया से 3 times larger है, यानी 3 गुना ज़्यादा है. Okay, now third one is growth rate is the difference between the birth rate and death rate. As you all know that what is growth rate? Growth rate is a difference between birth rate and death rate. Okay, now fourth point, our population is not equally distributed. जो हमारे इंडिया की population है वो equally distributed नहीं है, कहीं पे ज़्यादा population है तो कहीं पे कम population है. Now fifth one, it is not the quantity but the quality of persons that is important. इसका मतलब है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी होती पर्सन्स की वो ज़रूरी नहीं है, बट जो उस पर्सन्स की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है. ओके, वंस अगेन सी दिस, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी but the quality of person that is important. Now sixth point is our country is one of those countries where per capita income is low. हमारे इंडिया की जो टोटल इनकम है यानी पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, लो है, यानी कम है. ओके, नाउ सी द सेवेंथ पॉइंट, the government is making efforts to raise the people's standard of living in various ways. जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश कर रही है कि वो जो इंडिया में पीपल रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मतलब वो अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से रहे. Okay, so this was our quick review. Now we will move towards the quiz zone. Okay, now let's see the quiz zone. Multiple choice question. Everyone just learn this at home. This is your homework that you have to learn your quiz zone and writing zone of this chapter. Okay, when you will come I will ask you the question on this chapter. Understood? Okay, multiple choice question. How many countries are larger than India in area? इंडिया में कौन सी कंट्री है हमारी, इंडिया कौन से नंबर पे आती है एरिया में, 6th नंबर पे आती है. 7th नंबर ने इंडिया से पहले कौन सी कंट्रीज आती है, हमने पढ़ा था कि इंडिया से पहले 6 कंट्रीज आती है और 7th नंबर पे हमारी कौन सी है, इंडिया है 7th नंबर पे. ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है. ओके. थर्ड, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? यानी अपने इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 2011 सेंसस में? वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी है, मैंने आपको बताया था 1030 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. सी,
West Bengal had the highest density with 1030 person per square kilometer. So West Bengal will be the answer. Now see, the adult population of India is only, हमारे इंडिया की adult population कितनी है? 56%. Understood? Now everyone turn your page. Okay, which of the following state is sparsely populated? Sparsely यानी less populated. कौन सा ऐसे state है जो कम populated है? अरुणाचल प्रदेश. मैंने आपको बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ही है. ओके, नाउ द बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. Senior citizens are those who are above dash years. Senior citizens कौन है? जिसकी एज क्या है? 60 years. वो सारे क्या है? Senior citizens है. The area of China is dash times more than that of India. तो जो एरिया है चाइना का वो कितने टाइम्स बड़ा है इंडिया से? कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना में? 3 times. ओके, नाउ सी द थर्ड वन. The population in the villages is nearly dash. हमारे इंडिया की विलेजेस की पॉपुलेशन कितनी है? 70% है. डैश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश. डैश इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला है. ओके, नाउ सी पार्ट. इंडिया इज द डैश. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया. नो, लार्जेस्ट कंट्री नहीं है एरिया में. इंडिया से पहले 6 और भी कंट्रीज आती है. सो इट विल बी फॉल्स. ओके, आफ्टर चाइना इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड. यस, पॉपुलेशन में चाइना के बाद इंडिया का नंबर सबसे पहले आता है. इंडिया की पॉपुलेशन जो है सेकंड नंबर पे आती है. सो इट इज ट्रू. नाउ सी द थर्ड वन. राजस्थान इज अ थिनली पॉपुलेटेड स्टेट. जो राजस्थान है वो थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है मीन्स कम पॉपुलेटेड है? नो, लेकिन जो राजस्थान है वो थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है. सो राइट हियर फॉल्स. Now fourth one. The difference between birth rate and death rate is growth rate. जो birth rate और death rate के बीच का difference होता है वो कौन सा होता है? growth rate. So write here true. Fifth one. The government is making efforts to educate the people. जो गवर्नमेंट है वो क्या एफर्ट कर रही है कि वो लोगों को एजुकेट कर सके. Yes, this is true. Okay. Now see the D part, that is match the column. See, birth rate, the number of birth per 1000 year. So birth rate will be what? The number of birth per 1000 a year. Now second one is India. India is the second most populous country. Third one is plains. Plains are dense populated. Dense populated means more populated. Okay. Government. Right to Education Act. Government ने क्या पास किया है? Right to Education Act. Now fifth one is West Bengal. West Bengal is the state with the highest density. जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा density. Understood everyone? I hope you all understood this quiz zone. Now we will move towards the writing zone of this chapter. Okay. See, writing zone of this chapter, chapter 12, writing zone. Answer the following questions. So see, the first question is, what is the most important resource of a country? Give a reason. हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन बीइंग. सो सी द आंसर. ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री बिकॉज द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, मिनरल एक्सेट्रा डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कंट्री का
बिकॉज जो भी अदर रिसोर्सेज है जैसे लैंड, मिनरल और अदर रिसोर्सेज जो भी है वो किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अंडरस्टूड? Once again I repeat, a human being is the most important resource of a country because the use of other resources like land, mineral, etc. depends on human being. Okay? Now see the second question. What is census? Census क्या होता है? आंसर देखिए, सेंसस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और एन एरिया डन बाय द गवर्नमेंट। सेंसस एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं और एन एरिया डन बाय द गवर्नमेंट, और एक एक एरिया का सेंसस ले सकते हैं कि एक एरिया में कितने जने रहते हैं। ओके? Once again I repeat, census is a systematic process of counting the population of a country or an area done by the government. Okay? Now see the third question. What is the total population of India according to 2011 census? 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? The total population of India according to 2011 census is 121 crores. I had already told you कि 2001 में इंडिया की population 102 crores थी. Okay? In 2011 the total census is 121 crores. Okay? Now see the fourth one. Name 6 countries larger than India in area. 6 countries जो इंडिया से larger है एरिया में. See the answer. 6 countries larger than India in area are Russia, Canada, the United States, Brazil, China and Australia. So these are the 6 countries which are larger than India in area. Understood everyone? I hope you all understood this. Once again I repeat, 6 countries larger than India in area are Russia, Canada, the United States, Brazil, China and Australia. Understood everyone? I hope you all understood this. So now we will move towards the 5th question. Now see, give reason for the rapid growth of population. कौन से रीज़न है जिससे रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की? फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ऐसे रीजन जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हो रही है वो कौन से हैं? सी, ए पार्ट, इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट. मैंने आपको बताया था कि जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रही है और जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रही है. इस वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है. बर्थ रेट तो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इंक्रीज हो रही है. और जो डेथ रेट है वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड. ओके, एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड. अंडरस्टूड? नाउ बी पार्ट, लैक ऑफ एजुकेशन. सी, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बर्थ रेट बढ़ रही है. सी, एडवांस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी. एडवांस हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज है तो उससे क्या हो रहा है? जो डेथ रेट है वो कम हो रही है. ओके, बेटर फूड एंड लिविंग कंडीशन. बेटर फूड भी मिलता है और लिविंग कंडीशंस भी अच्छी होती है. ओके, नाउ वंस अगेन आई रिपीट दिस, increase in the birth rate and decrease in the death rate. Okay, किसकी वजह से हो रहा है? The birth rate, lack of education, and death rate is advancement in the medical field. C, B part, lack of education. एजुकेशन की वजह से भी रैपिड ग्रोथ
इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्रीज हो गए हैं। नाउ C1 इज एडवांस्ड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटी। एडवांस हॉस्पिटल्स भी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई है, उससे डेथ रेट कम हो रही है। बेटर फूड एंड लिविंग कंडीशन, बेटर फूड भी है और लिविंग कंडीशंस भी अच्छी है, इसलिए जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर नाइसली. Please just do quiz zone and writing zone of this chapter. Learn it thoroughly. Okay? Bye everyone. Take care.